Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and with my specialty in the subject of biology, I will be discussing from now onwards some of the very common viral infections that are very important for the grade 11 students to understand, and you can obviously find them in your book of biology in chapter 5. So we will be discussing in a very organized form the etiology, the clinical features, and the management procedures that are performed to tackle some of the viral diseases. At the end of this lecture, hope that you will be having a very good idea of smallpox, what are its causative factors, how it is managed, and then also we will discover the measles and the mumps, what sort of viral infection are these and how they infect the individuals, what sort of symptoms you can observe in these different types of patient, and finally we will also cover how these viral infections they can be treated and prevented through different measures. So I will start off with a very contagious disease known as the smallpox that was caused by DNA enveloped virus that belongs to the genus of orthopox viruses. The specific virus species that was involved in this was the variola virus. Then you can see it was a pandemic in the late 19th century and an epidemic in the early 20th century. Obviously pandemic is a disease जो कि different regions of the world में जब एक दफ़ा एक disease फैल जाती है world wide spread हो जाता है उसका, तो उसको हम we label it as a pandemic disease, and the epidemic term is used if it is only limited till a specific area. So in the early 20th century it was an epidemic in China basically. So the early or the initial symptoms of this viral infection, they were fever and vomiting, and later on there used to be fluid filled vesicle on the skin of the whole body, जिसके ख़त्म होने के बाद भी there used to be still remnants of scar of these fluid filled vesicles. So this used to be a highly contagious disease. Contagious disease का क्या मतलब होता है कि person to person बहुत speed से ये फैलती होती थी. तो obviously इस तरह की diseases को रोकने के लिए initially हम क्या कर सकते हैं कि जो patient इससे suffer कर रहा है इसको हम बाकी लोगों से isolate कर दें. So you can see the picture over here किस तरह से skin के ऊपर there are fluid filled vesicles, बहुत ही बड़े size के vesicles होते थे, जिसकी वजह से obviously जब ये viral infection ख़त्म हो भी जाती थी अगर, तो there used to be scars on overall skin. Mostly जब ये start हुई थी in the late 19th century, तो इसकी वजह से patients की death भी हो जाती थी. तो उस वक़्त ये एक बड़ी जो है एक कंटेजियस और ऐसी डिजीज़ थी जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो हाई था बहुत ज़्यादा. इन ऑर्डर टू मैनेज सच डिजीज़ इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आप उस पेशेंट को जो है आइसोलेट कर दें फ्रॉम अदर हेल्दी इंडिविजुअल्स. ऑब्वियसली फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट से इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलती हैं. जो किसी भी किस्म का जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है बिटवीन affected and the normal individual is avoided, and this was one of the ways to control the spread of this disease. उसके अलावा symptomatic treatment हम दे सकते हैं affected individuals को जो कि fever या pain से related हो सकते हैं. So those were the symptomatic treatment that were given at that specific period. उसके अलावा later on in the 20th century, somewhere in the 1950s, the vaccination was developed, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स की भी इम्यूनाइजेशन जो है वो की गई, और एक बड़ा ही ब्रॉड प्लान जो है वो तैयार किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जिसके तहत ओवर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर years of vaccination, somewhere in the 1970s it was announced that this viral infection has been completely eradicated from the earth. Then we come to another group of highly contagious viral infections, the mumps and the measles, that are caused by an RNA enveloped virus that belongs to the group of paramyxoviruses.
ऑब्वियसली आप देख सकते हैं हाईली कंटेजियस हैं, मींस पर्सन टू पर्सन बहुत स्पीड से इस तरह की जो वायरल इन्फेक्शन है ये स्प्रेड करती हैं। मम्स के केस में सिम्टम्स क्या होते हैं कि द पेशेंट कम्स विद अ पेनफुल स्वेलिंग अराउंड द नेक, जो कि यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है, और इसके अलावा लो टू हाई ग्रेड फीवर के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब नेक के अराउंड इस तरह की जो स्वेलिंग्स बनती हैं तो उसके केस में पेशेंट के लिए स्वॉलोइंग भी जो है, इवन ईटिंग ऑफ फूड, दैट इवन बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसके अलावा जो मीज़ल्स हैं उसमें भी स्किन के ऊपर देयर वर फॉर्मेशन ऑफ रैश ऑन द स्किन ऑफ द ओवरऑल बॉडी, एंड देयर यूज्ड टू बी अदर सिम्टम्स लाइक फीवर एंड कफ एज वेल इन केस ऑफ मीज़ल्स। इसके अलावा जो हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है जो कि जो सिम्टम्स होते हैं इस तरह की वायरल इन्फेक्शन की, यानी या फिर जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस तरह की वायरल इन्फेक्शंस का, वो क्या होता है। तो इन केस ऑफ मम्प्स द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अराउंड 16 to 18 days, वेयर एज इन केस ऑफ मीज़ल्स इट्स 10 to 12 days। अब इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली होता क्या है कि जिस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आपको एक हुई है कि वायरल जो है वो होस्ट में एंटर हुआ है, उससे लेके जो वो सिम्टम्स दिखाता है पूरे अपने, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो देयर इज़ अ साइकिल ऑफ द वायरसेस ऑब्वियसली, जो कि हमने अभी पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि जो वायरल इन्फेक्शन जब भी होती है तो वो अपने एक स्पेसिफिक इंक्यूबेशन पीरियड को गुजार के मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में वो सबसाइड हो जाती है। ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं होता तो इसके दौरान ही ऑब्वियसली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो उसको स्टार्ट करवा देते हैं इन केस ऑफ पेशेंट्स। तो इसमें भी ऑब्वियसली फ़ीवर और पेन रिलीफ या कफ रिलीफ से या स्किन रैशेस के लिए जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है एक तो वो हम लेंगे। उसके अलावा वी कैन यूज़ अदर मेजर्स एज वेल, जिसमें कि ऑब्वियसली जब एक हाईली कंटेजियस डिजीज़ है हमें तो उसको हमने प्रिवेंशन सबसे पहले करनी होती है ताकि वो दूसरे इंडिविजुअल्स तक ना पहुँचे। तो इसमें भी आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट और अदर प्रिकॉशनरी मेजर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द सिम्टम्स हाउ वी कैन सी देम इन केस ऑफ पेशेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ सफरिंग फ्रॉम मम्प्स। तो ये जो नेक वाला रीजन है यू कैन सी ओवर हेयर देयर इज़ स्वेलिंग ऑफ दिस एरिया। तो ये जो स्वेलिंग होती है इससे बेसिकली जो हमारा प्रोटेड ग्लैंड होता है जो बिल्कुल ईयर के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है ऑन द साइड्स ऑफ आवर फेस ऑन आइदर साइड, उसकी बेसिकली स्वेलिंग हो रही होती है पैरोटिड ग्लैंड की, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सलाइवा प्रोडक्शन भी हमारे ओरल कैविटी में अफेक्ट हो सकती है, और फिर हम उसका भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या कर रहे होते हैं कि वाटर इनटेक अपना बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली इन रीजन्स में जब यूनिलैटरल या बायलैटरल स्वेलिंग है तो उससे फिर हमारी जो च्यूइंग या ईटिंग हैबिट्स हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। मीज़ल्स के केस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्किन रैशेस बन रहे हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दो स्कार्स और द फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ द स्मॉल पॉक्स। सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने प्रिवेंट करना होता है डिज़ीज़ को फ्रॉम इट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम द अफेक्टेड टू द हेल्दी इंडिविजुअल। तो हम अवॉइड करते हैं कि जो इस तरह का पेशेंट है जिनको ऑलरेडी एक इन्फेक्शन हो चुकी है दे शुड अवॉइड फिज़िकल कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये इतनी कंटेजियस हैं कि इवन कफ के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू भी दे कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो उसके केस में बेड रेस्ट आप एडवाइस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लूइड इनटेक है ख़ास तौर पे मम्प्स के केस में, जिसमें कि ऑब्वियसली हमारे जो ओरल कैविटी के सलाइवा की प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट हो रही है। इसके अलावा यूज़ ऑफ मास्क ऑब्वियसली ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अफेक्टेड से हेल्दी इंडिविजुअल तक ना जाएं। इसके अलावा बहुत ही अर्ली एज में हम अब इंडिविजुअल्स को ये वैक्सीनेशन लगा देते हैं, द MMR वैक्सीन, मीज़ल, मम्प्स एंड रूबेला, to prevent such viral infections. So in very 10 to 15 months probably इस वैक्सीन को हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं into young individuals. We'll continue to discuss some of the other viral infections in our upcoming lectures. So do like our video and share it with other students as well if you have been able to understand and gain the concept of smallpox and measles and mumps as well.
And do mention in the comment section if you have any questions relevant to the topics that we have covered in this video, and do subscribe to our channel and click the bell button so you can receive latest notifications of our new videos on regular basis. Thank you very much.